So if you are sadist, you will continue. If you are not, then you will move away from them. A person was asking me once, he said, if wife is not good, we can give a divorce. Or a husband is not good, wife can give divorce. How do we divorce our relatives? And every now and then they are coming in our home, they stay for long. We have to, clean, cook and shop for them, and it's very difficult. I said, give me your phone and open your family WhatsApp account. He said, what will you do? I said, I'll just write one statement. Nobody will come to your house again. No, we cannot do that. I said, that's the problem. That's the problem. Don't be hypocrite. Don't be hypocrite. And then you might wonder, then we will be left all alone. Isn't it better to be alone than to be with fools? Well, I have another question from Wade Irving. I used to always feel connected, never felt lonely. However, now I'm 38 and I regret having a family or someone whom I deeply love. How to overcome this regret? Just find myself falling into grief. I have now no one, no lover, no children. Do you have anything to say about childlessness? Instead of moving towards enlightenment, I feel I was, but now falling into pointlessness. I can't understand what current state is. It's just pure confusion, that's it. And just listening to few discourses of few people on YouTube, it can't be called being spiritual. Once in a while, going to a temple or a chanting place and listening to chanting or doing some kirtan cannot be called being in the spiritual path. And if you were, dear Wade, then you wouldn't have felt this. That's the beauty of being in the yogic lifestyle. You are never lonely. You are so full. Because the God in which I say you have to have connectivity is not a God who is living somewhere up above the 7 planes in the sky, in the universe somewhere. No. The one whom I call God is the one who is all pervasive, who is ever truth, who is ever conscious, who is ever blissful. So you are in and with the godliness. So don't consider God as a superhuman being who is in some paradise, some place. No. So if you are on the earth, wherever you might go, the air is there. Can you say, I went to a place and there was no air? Air is everywhere. More than air is the space. Wherever you might go, space is everywhere. You can't say, there was no space. No, you can't say that. And more all-pervasive than the space is the divine, the absolute reality. Hence, no place is bereft of this godliness. A statue is not everywhere. A photograph of a so-called God is not everywhere. A statue of an avatar will be at one place. The avatar isn't everywhere. Although the avatar might speak that I am not the body, hence I am everywhere. But people don't understand that truth. So if you have realized the truth, you're never lonely. If you are lonely, then this just means that you don't know what the truth is, what godliness is, what being in bliss is. On being childless, if you feel that, you're 38, it's not late, always you can adopt. There's so many children who need, parent. Orphans are there. Pick anyone. Love anyone. Because you have no guarantee that your own biological child will be loving and caring to you. They might ditch you. They might leave you. That might happen even with the adopted one.
But when you adopt, it's your joy. If the adopted child leaves you, well, that's his or her joy. Everybody should be joyful. Learn right, correct way of dharma. Fill your daily schedule with learning. So there is my Bhagavad Gita in English. Please take that from my app, and I have just given the Patanjali Yoga Sutras. That's available in Amazon in English, so you can have that. There are English videos on YouTube, on my app. Listen to that. Learn to do kirtan. Learn to do pranayam. Learn to do, fill your heart and mind with these beauties. You will never be lonely. जो बंदा ये कहे ना मैं उदास हूं, मैं दुखी हूं, इसका मतलब वो अभी धर्म की राह पे नहीं है. जो परमार्थ सत्ता को समझता है और परमेश्वर को अपने भीतर बाहर जानता देखता है, वो ना अकेला हो सकता है ना उदास. हम उदास और अकेले तभी होते हैं जब हम ईश्वर की ईश्वरीयता नहीं जानते. और ईश्वर के स्वरूप को समझने के लिए सत्संग आवश्यक है, सुनना आवश्यक है. कितने लोग हैं जो अपने मन से परेशान हैं. भाई क्यों रहते हो परेशान? मन के बारे में ज्ञान प्राप्त करो. पतंजलि योग सूत्र हिंदी में और अंग्रेजी में, दोनों भाषाओं में अभी यहाँ आश्रम में से ले लीजिए. जिनने नहीं लिया है अभी तो अमेजोन पे डाल दिया, उसको जो मर्जी वहां से ले ले. वो तो बढ़िया है, वो तो घर बैठे आ जाएगा आपको. पढ़ो उसको. जैसे हम धन अपना कैसे बढ़ाएं, तो लोग शेयर मार्केट वालों से विचार करते हैं. कंसल्टेंट होते हैं ना, कि कहाँ शेयर डालो, कहाँ खरीदो, टैक्स कैसे बचाओ, टैक्स किस तरह से भरो, उसके लिए कंसल्टेंट होते हैं. शेयर मार्केट एनालिसिस्ट होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं. वो हमारा धन कैसे बढ़े. फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होते, वो बताते हैं कहाँ खरीदो भाई, यहाँ आज खरीदोगे साल में दुगना हो जाएगा, ले लो जी ले लो. तो थोड़ी अकल को भी बढ़ाने के लिए कंसल्टेंट ले लो, हम दे रहे. कंसल्टेशन दे रही हूं मैं. अब भाई ये तो कोई बात ना हुई ना कि चूंकि मैं चार्ज नहीं कर रही इसलिए जो बोल रही हूं उसकी कोई कीमत नहीं है क्या. बुद्धि बढ़ाओ, समझदार बनो, विवेकी बनो. विवेक के साथ जीवन को जियो. साधन भजन कैसे करते हैं, अपने ज्ञान के धन को बढ़ाओ. कल शाम को मैं, हमारी एक शिष्या है पंजाब से, कुछ 2-1 महीने पहले पति की मृत्यु हुई है. शायद मतलब 45-46 साल का होगा. बीमार था, बस 1 साल में एक के बाद एक चीजें हुई, उसकी मृत्यु हो गई. तो कल वो यहाँ मुझे मिली अपनी बेटी के साथ. तो फिर दुखी थी, दुख दिख रहा था. फिर भारत में हमारे चलता है ना, विधवा हो गई तो अब बेचारी बिल्कुल सीधी सादी रुआंसा है, दुखी है, परेशान है. तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भैया पति मरा है, तू नहीं मरी है. जीवन साथी गया, अब तू क्या कर सकती है उसमें. तो अपने जीवन को तो ठीक रख, मन को ठीक रख, शक्ल को ठीक रख, ठीक से कपड़े पहनो. ये क्या उजड़ी शक्ल बनाई, मुझे नहीं पसंद आ रही है शक्ल. तो आज मुझे दिखी है, आज वो वैसी है जैसी वो होती थी. अच्छे कपड़े, ठीक से बाल बनाए हैं, प्रेजेंटेबल जैसे होना चाहिए. अध्यापिका है, वेल ड्रेस्ड है, पढ़ी लिखी है. अब मन दुखी होने का मतलब ये तो नहीं ना कि पति के वियोग में चिंता और फिक्र कर करके खुद को भी बीमार कर लो. ये मेरे सामने बैठा है, इसके पिताजी की कैंसर से अभी मृत्यु हुई. वो हमारे शिष्य थे, बहुत अच्छे साधक थे. कैंसर हुआ, इलाज हुए, फिर कुछ समय ठीक रहे, फिर रिमिशन हो गया, फिर आ गया कैंसर, फिर ट्रीटमेंट किए, लेकिन इस बार उनका शरीर नहीं झेल पाया. और वो मरने से 24 घंटे पहले ही ना मेरे से बात हुई,
48 आवर्स, 48 घंटे पहले फोन में वीडियो कॉल में मेरे से बात हुई, और वो ऐसे हंस रहे थे, ऐसे हंस रहे थे, ऐसे हंस रहे थे, और जय हो जय हो जय हो बोल रहे थे। उनको बड़ा मजा आ रहा था। बीमार हैं, फूड पाइप में कैंसर हुआ था, मुंह में कैंसर था, ट्रीटमेंट से ऑपरेशन, रेडिएशन, कीमो सब कुछ हुआ है, तकलीफ में थे बहुत, लेकिन उस दिन वो ऐसे हंस रहे थे और जय हो जय हो जय हो। मेरा तो आनंद हो गया, और वो हंसे जाए, बात नहीं कर पा रहे थे मेरे से, इतने खुश, शिकायत नहीं कर रहे कि मैं ठीक क्यों नहीं हुआ, कि आप आशीर्वाद दो मैं बच जाऊं, मैं मरूं नहीं। बेटे को भी कहा कि मेरी तो जिंदगी बहुत बढ़िया आ गई, अब तो शरीर जाता है तो जाए, परवाह नहीं है। तो उसने कहा हमारी तो आपके साथ थी। बोले अब तुम देखो, जिस तरह से मैंने अपना जीवन सुधारा तुम सुधारो। अब ये भी मेरे सामने मुस्कुरा रहा है, रो नहीं रहा है, वो भी मेरे सामने है, मुस्कुरा रही है, रो नहीं रही है। देखो कंसल्टेंट हम कितने बढ़िया हैं। इधर विचार विमर्श दिया, इधर बंदा ठीक। तो कई बार हंसती हूं, क्योंकि मेरा काम ही है, मुझे ये लटकी हुई उदास शक्ल पसंद नहीं आती है। ये क्यों ऐसे, क्यों, किस लिए? दुनिया में हर चीज टूटने के लिए बनी है। कोई आदमी हमेशा जिंदा रहेगा नहीं, सब लोग हमेशा अच्छे रहेंगे नहीं, पैसा हमेशा रहेगा नहीं, सम्मान इज्जत भी आने जाने वाली चीज है, किस्मत से मिलती है, किस्मत से चली जाती है। तो इस सारे ड्रामे में आपको संभालता कौन है? आपका ज्ञान संभालता है आपको। तो सुबह उठिए और स्नान आदि करने के बाद अपना प्राणायाम करिए, मंत्र जाप करिए, आनंद लीजिए, और आनंद से मन की झोली भर के फिर दिन भर जिसको मिलो उसको मुस्कुराहटों के प्रसाद बांटते रहो। बंदा पूछेगा भी तुमसे, कोई हो सकता है पूछे कोई कि आप इतना मुस्कुराते क्यों हो? तो स्वामी राम तीर्थ ये कहा करते थे, दिल में समा गया कोई, रूह पे छा गया कोई, आप ही आप रह गया, मुझको मिटा गया कोई। अब तो अंदर राम ही राम है। तो हम जिसको मिलते हैं तो मिलने वाले को फीलिंग यही आनी चाहिए ना, कि जैसे वो राम को ही मिल रहे। बड़ी प्यारी शेर है ये, बहुत सुंदर। दिल में समा गया कोई, रूह पे छा गया कोई, आप ही आप रह गया, मुझको मिटा गया कोई। अब वो ये बंदा या औरत कहीं भी जाएगा तो वो जा रहा है या वो राम रूप होकर के सबको मिल रहा है, राम रूप होकर के सबसे बातचीत करता है, राम रूप होकर के सबके साथ प्रसन्नता, आदर, मान, सत्कार से मिलता है। याद रखिए ये बात। दूसरों को प्रेम आदर दो, मांगो मत, चाहो मत। भोजन पानी चाय दीजिए, खिलाइए। तुम्हारे घर से एक व्यक्ति ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसको आप मतलब खिला पिला के ना भेजे। एक व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुम्हें मिले और तुम उसका सम्मान ना करो, उसको अच्छा कॉम्प्लीमेंट नहीं दो। लर्न दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल आर्ट व्हाट आई एम टॉकिंग। whomsoever you meet, give them good compliments. Oh, you look so good. Oh, your skin is nice. Oh, your eyes are so good. You speak so nice. You cook so nice. You walk so nice. Maybe nothing is nice in that person. A person is foolish. Then you can say you are so nicely foolish. But still pay some compliment. A girl brought her office colleague to her home when she was about to leave office, and he met and she said, would you like to come to my home? He had some different idea in his head. Oh, sure, why not? Let's go. So she takes him home and she made him sit in the living room. And he had some, hanky-panky ideas going in his head. And in 5 minutes or so, she brought 3-4 kids with her. And she said,
see this uncle? Children said, yes, we are seeing the uncle. If you will not drink milk, then you will look like him, ugly. You will be a weakling, a chooser. So you should drink milk every day. So this lady is teaching her kids to drink milk by bringing this man at home and exhibiting that if you don't drink milk, then you don't look handsome and good, and you will look like a ugly weakling. And he had some different ideas in his head. Don't do this to anyone. Give good compliments. Serve, love, and meditate more. And see how much beauty will fly and fill up in your life. खूब ध्यान करो, खूब सत्संग श्रवण करो, खूब सबकी सेवा करो. जब जाओ यहां से तो रास्ते में कोई रिक्शा वाला है, कोई रेडी वाला है, कोई भी है, प्यार से बात करो ना उनसे. उस दिन हम कल जब हम ऋषिकेश से लौट रहे थे तो बीच में एक जगह पर मेरठ के आसपास थोड़ा ट्रैफिक था, तो मेरा शीशा थोड़ा नीचे था, तो 2-4 आदमी एक रेडी वाले से झगड़ रहे हैं, पैसे कम कर, ज्यादा पैसे कम कर. तो मैं सोच रही थी अगर ये बंदा किसी ब्रांडेड स्टोर में जाए तो वहां भी जाके ऐसे ही करेगा, पैसे कम कर, ज्यादा क्यों लगाते हो तुम. ब्रांडेड स्टोर में तो मां मर जाए तो नहीं मुंह खोलेगा कि पैसे ज्यादा क्यों है. जितने भी हों, एक ब्रांड का लेबल लग जाए, वो चाहे 3,000 मांगे कि 5,000 मांगे, तुम फट से दे देते हो क्योंकि ब्रांडेड है. और वो रेडी वाले से 5 रुपए के लिए झगड़ रहे, रिक्शे वाले से झगड़ रहे. माने गरीब आदमी का ही खून चूसोगे तुम, और उस पर तुम सोचते हो तुम बड़े धार्मिक आदमी हो. पागल हो क्या. अभी अनंतानंद गए थे दिल्ली, चांदनी चौक, कुछ काम से, पुस्तकों का कुछ काम था. तो वहां एक वो होता है ना, वो छोले कुलचे बेचने वाला, तो उसने ना इसको देख के कहता है, लो स्वामी जी लो छोले कुलचे खाओ. एक बोले नहीं मुझे नहीं खाने. कह रहे नहीं खाओ. बोले मुझे नहीं खाने. कह रहे नहीं पर मुझे खिलाने हैं, आप खाओ, मैं पैसे भी नहीं लूंगा. कि तो पर मुझे खाने नहीं है तो मैं क्यों खाऊं. कहते महाराज मेरे लिए खा लो.